Hello students, how are you? Hope you all are studying at your home. Just enjoy. It's a quality time data. Just take maximum to maximum benefit. Study at your home, है ना. और either you will study physics, chemistry or biology, whatever you want. But be in a please make a contact with the study. Don't spoil your time. It's a quality time, है ना. तो just come to our topic, that is we are just going through the first chapter of the NCERT, that is the living word. And in living word I have told you about, just take a quick revision, I have told you about the life. What is life? I told you that if there is a single cell exists, then life exists, means cell is directly proportional to the life. If cell is exist there, then life is exist there. If cell is not exist there, then life is not exist there. This is the basic structural and functional difference between the living organism and the non-living organism. Okay, and I have also told you about the characteristics of the living organism, in which four major characteristics are there to show how life sustain, and these are growth, metabolism, है ना, reproduction and consciousness, in which we have discussed the first characteristic of a living organism in our earlier lecture. And I have told you about the definition of the growth, that is growth is the increase in cell number plus increase in cell mass, that is it is equivalent to the height plus weight, है ना. And I have also told you about the growth is a characteristic feature of a living organism. I have also told you about that growth is the defining feature of living organism or not. Growth is not a defining feature of a living organism. इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं है, तो क्या वो लाइफ उसकी ख़त्म हो जाएगी? क्या वो डाई कर जाएगा? नहीं, वो डाई नहीं करेगा अगर उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन अ बोना पर्सन ना, आपने एक ड्वार्फ पर्सन को देखते हो, ठीक है, तो बेचारे की हाइट कितनी छोटी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो लाइफ है, वो जी रहा है. तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द by taking an example of sand dunes. I have just told you that non-living organism has an external growth while the living organism has an internal growth, है ना. living organism के पास internal growth होती है और जो non-living organism होते हैं उनके पास external growth होती है. sand dune का example मैंने आपको दिया था, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम अपने previous lecture में पढ़ चुके थे. बस मैं यहाँ पर आपको एक quick revision दे रही थी ताकि आप अपने पुराने जो lecture है उसको just within a 2 minute 3 minutes आप जो है उसको recall कर सको. Okay, now come to the next characteristic of a living organism, that is reproduction. Four characteristics are there, that four major characteristics are there, that is growth, reproduction, metabolism and consciousness. Growth we have discussed in the earlier lecture. Now today's topic is reproduction. Okay, now first of all I am writing here reproduction. Okay, what is the meaning of reproduction? री मतलब yes, जैसे बोलते हैं ना जंबल वर्ड्स में, रीअरेंज द फॉलोइंग. रीअरेंज मतलब इसको दोबारा से अरेंज करो, है ना. तो यहाँ पर भी री का मतलब क्या है? री का मतलब है अगेन. री मतलब क्या है? अगेन. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना. तो अगर रिप्रोडक्शन मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई है उसको हमें दोबारा से प्रोड्यूस करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? सपोज़ ये एक मेल है ना, और आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम हियर जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, योर इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, है ना. एंड दिस इज़ द फीमेल. ये मेल पार्टनर है, ये फीमेल पार्टनर है. इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कोइटस हो रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय कोइटस? मीटिंग, ठीक है. और मीटिंग होने से क्या हुआ? एक छोटा सा बेबी प्रोड्यूस हुआ, है ना. एक छोटा सा बेबी प्रोड्यूस हुआ. तो अब देखो, ये जो मेल पार्टनर था ये भी ह्यूमन था, ये जो फीमेल पार्टनर है ये भी ह्यूमन है,
है ना। और ये जो बेबी है ये भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो यानी कि जैसा ह्यूमन था उसने अपने बच्चे को भी ह्यूमन ही प्रोड्यूस किया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पेरेंट ह्यूमंस होंगे और जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो किसी कैट का प्रोडक्शन होगा, किसी डॉग का प्रोडक्शन होगा, या किसी कैमल का प्रोडक्शन होगा, या किसी और चीज़ का, एलिफेंट का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो जब हम सेम चीज़ ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करा, सेम स्पीशीज़ को ही प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कैट को ही रिप्रोड्यूस करेगी, तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। अब हम इतना समझ गए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेम स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करना, दोबारा से बनाना। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं। तो यस, रिप्रोडक्शन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर of a living organism. Yes, reproduction is the characteristic feature of a living organism. I told you that there are 4 characteristics of a living organism, that is growth, and the second one is reproduction. तो yes, अगर कोई living organism है तो उसमें characteristic feature होगा कि वो reproduce करे. Okay, now types of reproduction. So there are 2 types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. That is asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, व्हाट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए, जैसे यहाँ पर देखो आप क्या है, सेक्शुअल है, अगर सेक्शुअल के आगे खाली ए लग जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए लग जा रहा है ना, तो अगर सेक्शुअल के आगे हम ए लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए का मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें आप सेक्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, यानी कि जिसमें आप मेल गैमीट स्पर्म को और फीमेल गैमीट ओवम को इन्वॉल्व कर रहे हो और उन दोनों की मीटिंग करा रहे हो और एक बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसा कि ये ऊपर हुआ था, है ना। यहाँ पर मेल गैमीट्स लिए थे, स्पर्म लिए थे, यहाँ पर फीमेल गैमीट्स लिए थे, ओवम लिए थे, उन दोनों का कोइटस मीटिंग हुई थी और एक ह्यूमन बींग प्रोड्यूस हो गया था। दिस इज द सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बट हियर दिस इज ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा और वो सिंगल पेरेंट ही जो होगा बेबी को प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम समझ गए, दोज ऑर्गेनिज्म इन विच the kind of reproduction in which 2 parents are not involved, a single parent is capable to give rise to their baby, to give rise to their offspring. And the sexual reproduction, 2 parents are involved, their coitus takes place and 2 gametes get fused and then the baby is produced. Okay, now this is a definition of sexual reproduction and asexual reproduction. तो asexual reproduction में हम क्या बोलेंगे कि हमारा सिंगल पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे कि ये एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम पहले बात करते हैं फंजाई की, कि फंजाई में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो हम बात करेंगे, एक तो फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है रिप्रोडक्शन, दूसरा फंजाई में फ्रेगमेंटेशन से होता है रिप्रोडक्शन। ये आपके नीट में आता है बेटा, ठीक है। तो फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है और फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब स्पोर्स क्या होते हैं, देखो स्पोर्स जो होते हैं वो भी आपके स्पर्म की, जैसे आप देखो मेल में जो हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन मेल का जो गैमीट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ह्यूमन फीमेल का
जो गैमीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवा। ये स्पर्म और ओवा जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है, एक बेबी बनता है। तो स्पर्म क्या है, गैमीट है ना। लेकिन हम गैमीट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज गैमीट, अब स्पर्म है क्या, एक सेल ही तो है ना। ओवम भी क्या है, एक सेल ही है ना। तो ये सेल है, गैमीट्स क्या है, सेल है। बट वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं उनको हम गैमीट बोलते हैं, और वो सेल जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम स्पोर्स बोलते हैं। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गैमीट्स एंड स्पोर्स। स्पोर वो सेल है जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, गैमीट वो सेल हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक लंबी सी चीज़ को टुकड़ों में बांट देना। टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। जैसे कुछ जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना, तो चैप्टर नंबर 2 में आप फंजाई को पढ़ोगे। वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ फंजाई जो हैं वो हमारे धागे जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, धागे जैसे होते हैं। वहाँ पर आप इसको पढ़ोगे। तो अब आप जैसे आपको कोई बोलेगा कि थ्रेड को तोड़ो, तो आप क्या करोगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, थोड़ा तोड़ोगे फिर थोड़ा तोड़ोगे। ऐसी फंजाई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो फिलामेंटस फंजाई होती हैं, फिलामेंटस फंजाई होती है। फिलामेंटस फंजाई का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की जो फंजाई होती हैं। तो उनको आप क्या करोगे, पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। सपोज ये इसके पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, ये इसके पार्ट हैं। ठीक है। अब ये एक पार्ट से पूरा का पूरा फंजाई बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट से एक ही पार्ट बनेगा, एक पार्ट से पूरा फंजाई बनेगा। ऐसे सेकंड पार्ट से फुल फंजाई बनेगा, थर्ड पार्ट से भी फुल फंजाई बनेगा एंड फोर्थ पार्ट से भी फुल फंजाई बनेगा। तो ऐसे फंजाई जो फिलामेंटस टाइप के होते हैं, जो हमारे फिलामेंटस टाइप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन उनमें होता है, उनमें फ्रेगमेंटेशन। तो फंजाई रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एज वेल एज फंजाई रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये हम जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये और क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओके, बडिंग। तो हम अभी देख लिए थे, हमने क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था। तो फ्रेगमेंटेशन किस में आएगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। ए सेक्शुअल स्पोर्स भी किस में आएगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। और ये बडिंग भी किस में आएगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। अब बडिंग में आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है, ठीक है, आई एम मेकिंग अ रफ डायग्राम हियर। इस हाइड्रा में क्या होगा, पहले एक बर्ड अराइज होगी, ये छोटी सी बर्ड मतलब कली, ये छोटी सी कली अराइज होगी। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रा है, ठीक है, ये कली बाद में जाके एक पूरा का पूरा छोटे से हाइड्रा में, जैसे स्मॉल बेबी होता है ना, ऐसे छोटे से हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये पूरा बन जाएगा, ये क्या होगा, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। फिर ये अपनी इंडिविजुअल लाइफ जिएगा। फिर ऐसे इसके ऊपर भी एक बर्ड निकलेगी, वो स्मॉल इंडिविजुअल हाइड्रा में कन्वर्ट होगी और एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड बर्डिंग, कि एक छोटी सी बर्ड जो है वो हाइड्रा में कन्वर्ट होती है। फिर वो जो स्मॉल हाइड्रा है वो पेरेंटल हाइड्रा से जब पूरा बन जाता है तो डिटैच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब हट जाता है, सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। अच्छा, एक वर्ड और है टॉर्यूलेशन। बर्डिंग में एक वर्ड और है टॉर्यूलेशन, और टॉर्यूलेशन जो होता है वो शो होता है ईस्ट में। टॉर्यूलेशन जो होता है वो शो होता है ईस्ट में। अब ये जो टॉर्यूलेशन है ये ईस्ट में कैसे शो होगा, सपोज दिस इज़ अ ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले समझो ईस्ट है क्या। तो ईस्ट इज़ अ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हम यहाँ पर एक पार्टीशन करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोकैरियोट्स और यहाँ पर हम लिखते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, सेल है। आपको पता है सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म।
ठीक है। यहाँ पर भी सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना। अब क्या होगा, आपको पता है कि सेल के बीच में जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डेट इज़ डीएनए और आरएनए, है ना। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में इस डीएनए को कवर करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होगा, इस डीएनए को कवर करने के लिए बाहर से डबल वॉल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अच्छा, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से हम क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि कोई तो वॉल होगी ना जो उसको सेपरेट करेगी आउटसाइड इन्वायरमेंट से, है ना। जैसे आपके घर की वॉल होती हैं, आप घर में वॉल बनाते हो एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करने के लिए, अगर वॉल ही ना हो तो सारा जो है, सारा पूरा जितना भी आपका एरिया है वो सारा एक ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई वॉल नहीं है तो पूरा का पूरा एरिया एक ही है, साइटोप्लाज्म भी वहीं है, इसी में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी और डीएनए भी वहीं प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पर देखो एक वॉल आई और उस वॉल ने क्या करा, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया, है ना। अंदर क्या हो गया, ये सारा कंपार्टमेंट क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया, है ना। और बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। जबकि यहाँ पर हम न्यूक्लियस कह ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर हम न्यूक्लियस कह ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रो मतलब फॉल्स या फिर पुराना, फॉल्स बोल दो, या फिर प्रिमिटिव, क्योंकि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आई थी, ठीक है। प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो पुराना न्यूक्लियस हमारा इस तरीके से था जहाँ पर कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं थी, और यहाँ पर क्या है, वॉल प्रेजेंट है, तो हम इसको न्यूक्लियस बोल देंगे। तो यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस हम उसे बोलते हैं जिसके पास वॉल होती है, फॉल्स न्यूक्लियस हम उसे कहते हैं जिसके पास वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उसके पास वॉल नहीं होती, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, हम जीनोफोर बोलते हैं। न्यूक्लियस ना बोल के हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ईस्ट है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल है, और यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का मतलब उसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ईस्ट में होता क्या है, सिंगल सेल है तो हम एक ही सेल बनाएंगे, है ना। तो ये सेल क्या करेगा, पहले एक बेबी प्रोड्यूस करेगा, तो इसको डिटैच हो जाना चाहिए था, जैसे हाइड्रा में डिटैच हुआ था, पहले इसने बेबी प्रोड्यूस किया था और फिर ये क्या हुआ था, अपने पेरेंट से हट गया था। बट यहाँ पर ये हटेगा नहीं, फिर ये वाला जो है ये अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा, फिर ये वाला जो है वो अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा। आप देख रहे हो एक चेन बन गई है और कोई भी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, बाद में जाकर कभी एक साथ डिटैच होंगे। तो अगर ये इमीडिएट डिटैच हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। अगर ये पूरी चेन बनाते हैं, जैसे ये चेन इसके बनाया, इसने अपना बेबी बनाया, इसने अपना बेबी बनाया, इसने अपना बेबी बनाया, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज टॉर्यूलेशन। और टॉर्यूलेशन जो है वो हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ओके, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट प्लेनेरिया? व्हाट इज़ प्लेनेरिया? ओके, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे, वहाँ पर आप देखोगे प्लेनेरिया के बारे में। तो प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया में आप बस अभी इतना समझो कि प्लेनेरिया जो है उसमें आपको ट्रू रिजेनरेशन देखने को मिलेगा, ट्रू रिजेनरेशन देखने को मिलेगा। अब ट्रू रिजेनरेशन क्या है, सपोज दिस इज़ अ प्लेनेरिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेनेरिया है। सपोज इसका कोई पार्ट जो है वो, कोई पार्ट जो है, इसका कोई भी पार्ट लॉस्ट हो गया, सपोज इसका इतना पार्ट लॉस्ट हो, अभी हम इसको फ्रेगमेंट्स में बना रहे हैं, 1 2 3, ये एक फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ये सेकंड फ्रेगमेंट है, ये थर्ड फ्रेगमेंट है, ये फोर्थ फ्रेगमेंट है ना। सपोज इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो लॉस्ट हो गया, है ना, और लॉस्ट होकर यहाँ पर आ गया,
पार्ट नंबर 1 जो है वो लॉस्ट होकर यहाँ आ गया। अब इसमें क्या बचा, 2, 3 एंड 4। तो ये जो 1 है इसके पास इतनी पावर होगी कि ये पूरा का पूरा प्लेनेरिया दोबारा से बना दे। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सिंगल फ्रेगमेंट ने एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना दिया। समझ में आ रहा है। एक इसका फ्रेगमेंट लॉस हुआ था, डेट इज़ 1, ये 1 बाहर निकला और इस 1 ने खाली एक पार्ट नहीं बनाया, इस 1 ने पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रू रिजेनरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रू मतलब पूरा का पूरा बनाना, ट्रू रिजेनरेशन। तो ट्रू रिजेनरेशन इज सीन इन केस ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के केस में हमें पूरा रिजेनरेशन देखने को मिलता है। प्लेनेरिया के केस में हमें पूरा का पूरा रिजेनरेशन देखने को मिलता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजन, बाइनरी फिजन बोलेंगे इसको, बाइनरी फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब 2 में टूटना। तो ये 2 में टूट गया है ना। फिर ऐसे ये भी 2 में टूटेगा और ये भी कितने में टूटेगा, 2 में टूटेगा, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फिजन होता है, ठीक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इट मे बी सेक्सुअल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो वो हमारा कैसे भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं बहुत अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये वाला जो डायग्राम था जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें देखो क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर एक सेल फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना। सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और सेल का नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, ग्रोथ हो रही है। मैंने आपको ग्रोथ में बताया था कि सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, सेल का मास इंक्रीज़ होता है। तो सेल का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है और सेल का मास भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये ग्रोथ भी है ना। आप देखो ना, सेल का नंबर, अभी एक ही सेल था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, 4 के बाद 8 होंगे, 8 के बाद 16 होंगे, है ना, जस्ट डबल हो रहे हैं। तो ग्रोथ का नंबर भी सेल का नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है और सेल का मास भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, तो हम इसको ग्रोथ भी तो बोल सकते हैं ना। और ये एक तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। रिप्रोडक्शन कैसे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास और कोई तरीका नहीं होता रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने सेल को ही डिवाइड करते जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कह लो या फिर रिप्रोडक्शन कह लो, दोनों सेम बात है। दोनों एक दूसरे के, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या बोलते हैं, सिनोनिमस वर्ड्स हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड्स हैं, यानी कि दोनों के मीनिंग सेम है। ग्रोथ कहोगे तो भी बाइनरी फिजन है, रिप्रोडक्शन कहोगे तो भी बाइनरी फिजन है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरीके से। और जो ग्रोथ होती है वो कैसे हो रही है, डिवीजन से, है ना, डिवीजन से होगी, डेट इज माइटोसिस। मैंने आपको बताया था माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। जिसको नहीं पता वो अपना लेक्चर नंबर 1 दोबारा से देख ले इसका। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारी खुद की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए और वेट इंक्रीज़ करने के लिए माइटोसिस जो है वही डिवीजन जो है वो हमारी होती है, और रिप्रोडक्शन के टाइम पर मियोसिस होती है। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ किससे हो रही है, माइटोसिस से। और रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग है और ग्रोथ बिल्कुल अलग है ना। ग्रोथ बिल्कुल अलग है। एक ग्रोथ कैसे हो रही है, ऐसे ही
एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, फिर 2 4 में, तो ये क्या है, माइटोसिस ही तो है ना। तो माइटोसिस से ग्रोथ हो रही है, माइटोसिस से ग्रोथ हो रही है, और रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरीके से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो दोनों सेम वर्ड नहीं है, वो दोनों सेम मीनिंग नहीं है। ग्रोथ बिल्कुल डिफरेंट है और रिप्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, क्या वो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि रिप्रोडक्शन जो है क्या वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो आप क्या बताओगे, बताओ। डिफाइनिंग फीचर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हम मर जाएंगे, अगर हम बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो क्या हम मर जाएंगे। ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग देखे होंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, जिनका बेबी नहीं हो रहा, जिनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो पेरेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो वो मर जा रहे हैं, है ना। रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन हट गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हो कि जैसे आपने म्यूल्स को देखा है, ठीक है, म्यूल्स जो आप देखते हो, और आप वर्कर बीज देखते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना, वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। वर्कर बीज को देखते हो, ठीक है, या फिर आप क्या देखते हो, ऐसे कपल्स देखते हो जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने बेबी को, ठीक है। तो ये सब भी तो लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी हम लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, और इसीलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तो आप सबको पता होगा कि बाइनरी फिजन क्या है। तो बाइनरी फिजन में मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, बाइनरी का मतलब दो और फिजन का मतलब टूटना। जब एक सेल दो दो करके टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। मैंने आपको बडिंग के बारे में भी बताया कि बडिंग में क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बडिंग के बारे में कि बडिंग में एक छोटी सी बर्ड निकलती है और वो एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वो मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बनती है, और फिर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरेंटल बॉडी से हट जाता है। ये मैंने आपको बडिंग के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्पोरुलेशन के बारे में भी बताया था। स्पोरुलेशन में मैंने आपको यहाँ बताया था, ये बताया था मैंने आपको स्पोर्स के बारे में कि अगर स्पोर्स के थ्रू कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम स्पोरुलेशन बोलेंगे, है ना। और फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और मैंने आपको जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो हमने ये देखा कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है। रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फंजाई में हमने देखा कि स्पोरुलेशन से भी हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, जिसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होगा, उसका हर एक पार्ट जो है पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाएगा। उसके बाद हमने बर्डिंग को देखा था कि एक छोटी सी बर्ड अराइज हो रही है और वो एक बेबी में प्रोड्यूस हो जा रही है। फिर वो बेबी जब पूरा बन जा रहा है तो अपने पेरेंटल बॉडी से हट जा रहा है, डिटैच हो जा रहा है। फिर हमने टॉर्युलेशन में ईस्ट में पढ़ा था, ईस्ट में हमने पढ़ा था कि वो अपने पेरेंटल बॉडी से हटता नहीं है, एक चेन बनाता जाता है, और इसको हम बोलते हैं दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज टॉर्यूला और दिस प्रोसेस इज नोन एज टॉर्युलेशन। फिर हमने प्लेनेरिया में देखा था कि प्लेनेरिया में ट्रू रिजेनरेशन हमको देखने को मिल रहा था, जिसमें एक पार्ट जो लॉस हो रहा था वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना दे रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है क्या वो सेम बातें हैं या अलग अलग बात है। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम बात हैं, क्योंकि ग्रोथ भी
फिजन से ही हो रही है और रिप्रोडक्शन भी फिजन से ही हो रहा है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस से हो रही है और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल हो रहा है या फिर एसेक्सुअल हो रहा है। तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम बात नहीं है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे कपल्स देखते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। हम ऐसे बहुत सारे वर्कर बीज कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। हनी बी में होती हैं वर्कर बीज जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। म्यूल में भी हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं, हॉर्स और डोंकी को, तो इसीलिए ये भी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, उसके बाद भी ये लाइव हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। फॉर if you have any doubt, then please send me a message or contact me through a personal window of my WhatsApp. Okay, thank you so much. Bye bye.